اسماعیل کو الہی بخش کی کال موصول ہوئی۔ صاحب سب نے کھانا کھا لیا ہے۔ اسماعیل نے پوچھا تمہاری ڈیوٹی کہاں ہے؟ وہ بولا مین گیٹ پہ پہلی ڈیوٹی ہے، ابھی کھانا کھا کر ڈیوٹی سنبھالی ہے۔ اسماعیل نے کہا ٹھیک ہے، اب یوں کرو ذیلی کھڑکی کی کنڈی کھول دو، تمہارا کام ختم، اس کے بعد سمجھو کہ تم مجھے جانتے ہی نہیں۔ بخش بولا صاحب اس کے بعد بھی کوئی کام ہو تو خدمت کا موقع ضرور دینا۔ اس کے لہجے میں نوٹوں کی مٹھاس ابل رہی تھی۔ ضرور ضرور کہہ کر اسماعیل نے رابطہ منقطع کر دیا۔ 2 گھنٹوں کے بقدر وقت ایک نزدیکی ہوٹل میں گزار کر وہ فاضل خان کی کوٹھی کی طرف بڑھ گیا۔ مین گیٹ کی ذیلی کھڑکی اسے کھلی ملی۔ کھڑکی کا اکیلا پٹ کھول کر اس نے کوٹھی کے اندر جھانکا۔ الہی بخش اسے کرسی پر آڑا ترچھا پڑا نظر آیا اور وہ بے دھڑک اندر گھس گیا۔ کھڑکی کا بولٹ بند کرنا وہ نہیں بھولا تھا۔ اس کی جیب میں گلاک 18 موجود تھا، مگر اس نے الہی بخش کی گود میں پڑی کلیشنکوف اٹھانا مناسب سمجھا۔ کلیشنکوف کی کارکردگی بہرحال پسٹل سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اندرونی عمارت کی طرف بڑھتے ہوئے اس نے ذہن میں اپنی گڑیا کی آخری چیخوں کو تازہ کیا۔ اسے اپنی بہن کا کہا ہوا ایک ایک لفظ یاد تھا۔ اسی طرح فاضل خان کے منہ سے اگلتی ہوئی غلاظت بھی اس کی سماعتوں میں زندہ تھی۔ اسماعیل کی کنپٹیاں جیسے سلگ اٹھیں۔ صحن کو عبور کرتے ہی 4 بڑے ستونوں پہ بنا ہوا کھلا برآمدہ تھا۔ اس سے متصل ہی لکڑی کا منقش دروازہ جو ڈرائنگ روم کا تھا۔ وہ جیسے ہی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر گھسا، اسے سامنے سے کوئی دوڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ ٹھٹکا مگر آنے والا بلکہ آنے والی کو پہچانتے ہی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ وہ ہنا تھی، جانے دوڑتے ہوئے کہاں جا رہی تھی۔ اسماعیل کو دیکھتے ہی اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پہ حیرانی اور خوف کا ملا جلا تاثر ابھرا اور وہ رکنے کی بجائے پیچھے پلٹ کر بھاگی۔ چند قدم لے کر اسے جانے کیا خیال آیا کہ وہ دوبارہ رک گئی، مگر اس کا یہ رکنا بھی عارضی تھا۔ اگلے ہی سیکنڈ میں وہ دوبارہ بھاگ پڑی، مگر 2-3 قدموں کے بعد ایک بار پھر رک گئی۔ وہ شاید فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسماعیل دعا کر رہا تھا کہ کاش وہ اپنے کمرے میں جا کر چھپ جائے، مگر اس کی دعا رد گئی اور وہ باپ کے کمرے کے دروازے سے چند قدم پہلے رک کر پیچھے مڑی۔ اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ اعتماد کا تاثر ابھرا اور اس کے قدم اسماعیل کی جانب اٹھے۔ اسماعیل دھاڑا، میرے قریب آنے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گی، مگر ہنا کے قدموں میں لرزش نہ آئی۔ اس کے لبوں سے پر اعتماد آواز برآمد ہوئی، چلاؤ گولی، روکا کس نے ہے؟ اسماعیل نے کلیشنکوف کاک کر لی۔ آج مجھے کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں۔ مگر ہنا اس کے لہجے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس سے لپٹ گئی۔ شاہ جی ایسا مت کرو، واپس چلے جاؤ۔ دیکھو اس سے زیادہ دکھ برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں بہت کمزور ہوں، تمہاری توقع سے بھی زیادہ۔ پاپا کی موت کا مطلب مجھ سے انتقام لینا ہے۔ امی مجھے چھوڑ گئیں، تم بھی میرے نہ بنے۔ ایک پاپا کو تو میرے پاس رہنے دو، میں وعدہ کرتی ہوں انہیں تمہاری دنیا سے بہت دور لے جاؤں گی۔ وہ تمہیں دوبارہ پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے۔ بس ابھی چلے جاؤ، بہت رلا دیا ہے، مزید مت رلاؤ پلیز، چلے جاؤ، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اسماعیل نے اسے اپنے سے دور جھٹکا، ہے نا یہ ناممکن ہے، میں تم سے بھی زیادہ بے بس ہوں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے نیچے گری، مگر اسماعیل کے قدم بڑھانے سے پہلے وہ دوبارہ اس سے لپٹ گئی۔ تم نے پاپا سے انتقام لینا ہے نا، لو مجھے قتل کر دو، انہیں اس سے بھی زیادہ تکلیف ہوگی جتنی تمہیں اپنوں کے بچھڑنے سے ہوئی ہے۔ اسماعیل نے دھاڑتے ہوئے اسے دوبارہ دور جھٹکنے کی کوشش کی۔ میں کہتا ہوں دور ہو جاؤ، لیکن وہ بری طرح اس سے چمٹ گئی۔ شاہ جی نہیں، تم پاپا کو کچھ نہیں کہہ سکتے۔ وہ رونے لگی۔ اسماعیل بولا کون روکے گا مجھے؟ وہ بولی میں روکوں گی، تمہیں میری ماننی پڑے گی۔ اسماعیل بولا نہیں مانوں گا، آج میں کسی کی نہیں مانوں گا۔ ہنا بولی اگر تم نے قدم بڑھائے تو میں خودکشی کر لوں گی۔ اسماعیل بولا پرواہ نہیں، وہ ساری کشتیاں جلانے پر تل گیا تھا۔ ہنا بولی میری موت برداشت کر لو گے؟ اسماعیل نے کہا ہاں برداشت کر لوں گا۔ ہنا سسکی، ایک یہی دکھ باقی تھا۔ اسماعیل بولا نہیں، فاضل خان کی موت کا دکھ ابھی رہتا ہے۔ وہ بولی اچھا شاہ جی، ایک دفعہ میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو کہ تمہیں میری زندگی عزیز نہیں ہے اور میری موت سے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا، باخدا میں تیرا راستہ چھوڑ دوں گی۔ اسماعیل بولا یہ اتنا مشکل نہیں ہے مس ہنا خان، اور اس نے اس کی طرف نگاہیں اٹھائیں۔ ہنا کی پرنم آنکھیں اس کی طرف متوجہ تھیں۔ عجیب قسم کی بے بسی، دکھ اور امید کا تاثر تھا اس کی آنکھوں میں۔ اسماعیل بے خود سا ہو گیا۔ وہ آنکھیں اسے دنیا کی ہر شے سے عزیز تھیں اور ان میں اسی کی وجہ سے پانی بھرا ہوا تھا۔ اس کے لب آہستہ سے ہلے، شاہ جی مجھے باپ کی موت سے زیادہ تیری جدائی کا غم ہے۔ اگر پاپا کو قتل کرو گے تو تم سے دوری میرا مقدر بن جائے گی۔ کیا میرے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ ذرا سا چند تانے، اگر ظرف بڑا ہو تو معافی دینے پہ تانے نہیں ملا کرتے۔ میں نے تمہیں دعاؤں میں اپنے رب سے مانگا ہے، پاپا کا دشمن ہونے کے باوجود تمہاری سلامتی کے لیے سجدے کیے ہیں، سب کچھ ٹھکرا کر تمہارا ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا ہے، تمہیں چاہا ہے۔
मुझे इकरार है कि मैं तेरे बिना नहीं रह सकती। क्या अपनी हिना को नहीं बचाओगे? अच्छी तरह जानती हूँ तुम मुझे चाहते। मुझे देखो शाहजी, मैं वही हूँ जिसकी उतरन तुम्हें निशानी के तौर पर दरकार थी, जिसके लिए तुमने शराब छोड़ दी, गलत काम छोड़े। हाँ, गलत काम छोड़ दिए। हाँ, वही हूँ तेरी हिना, सिर्फ तेरी। हिना खान नहीं, हिना शाह। क्या मुझे बाहों में भरकर सारी दुनिया से दूर नहीं ले जाओगे? तेरे सारे गम, सारे दुख, सारे दर्द मुझे भी उतना ही बेचैन करते हैं जितना तुझे करते हैं। मेरी वफा का यकीन करो, भरोसा करो मुझ पर। जाओ, वापस चले जाओ प्लीज शाहजी, प्लीज। हिना की हिचकियां बंद गई थीं। क्लैशनकोव पे इस्माइल की गिरफ्त ढीली पड़ी और गन एक धमाके से नीचे जा गिरी। इस्माइल के दिमाग में एक एक की आवाज गूंजी, मेरी ये बात पल्ले बांध लो। मोहब्बत कमजोर होती है, चाहत इंसान को खोखला कर देती है। कभी औरत को खुद पर हावी न होने देना। वो जो कहते हैं ना कि मोहब्बत की नहीं जाती हो जाती है, मैं मानता हूँ सच कहते हैं, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका आए तो बाय गॉड उससे दूर भाग जाना, उसका सामना मत करना, बस उसे भुला देना। अपने अंदर की नफरत को हवा देना, ये तुम्हें ताकत देगी, तुम्हारी हिम्मत बढ़ाएगी। मगर इस्माइल की नफरत पे हिना की चाहत गालिब आ गई थी। इस्माइल को लगा कि वो मुकम्मल तौर पर हिप्नोटाइज हो चुका है। उसने सख्ती से आंखें भींची और थाड़ा, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन तुम हो, तुम समझी? तुमने मुझे कहीं का नहीं रखा। पाँव में पड़ी गन को ठोकर मार कर दूर करते हुए उसने जेब से पिस्टल निकाला और खींच कर दीवार पर दे मारा। बस अब खुश हो? यही चाहती थी ना कि सारी उम्र बेगैरतों की सी जिंदगी गुजार दूं? लो, खुश हो जाओ। बुला लो पुलिस को ताकि मुझे पुलिस के हवाले करने की तेरी हसरत भी पूरी हो जाए। अजीब किस्म की बेबसी का तासुर उसकी नस नस में भर गया था। वो जंग हार चुका था। फाजिल खान की बेटी ने उसे शिकस्त दे दी थी। वो दुश्मन की बेटी को मायूस करने की हिम्मत न कर सका था। हिना उसी तरह उसके साथ लिपटी रोती रही। अचानक फायर की आवाज आई और वो दोनों चौंक पड़े। आवाज फाजिल खान के बेडरूम से आई थी। हिना सरासीमा होकर चिल्लाते हुए कमरे की तरफ दौड़ी, पापा। इस्माइल के कदम भी उसी जानिब उठ गए थे। वो बमुश्किल दरवाजे तक ही पहुंचा था कि उसकी समातों में हिना की तेज चीख गूंजी, नहीं पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। अंदर दाखिल होने पर उसे फाजिल खान का बायां पहलू खून से रंगीन नजर आया और उसकी नजरें दरवाजे की तरफ उठी। इस्माइल को देखते ही उसने दोनों हाथ माफी के अंदाज में बांधे और शिकस्ता अल्फाज में बोला, शाहजी मुझे माफ कर देना, मैं तेरा कसूरवार हूँ, गुड़िया का ख्याल रखना। उसके साथ ही फाजिल खान की गर्दन एक तरफ ढलक गई। इस्माइल आहिस्ता से उसके साथ बैठा। उसका हाथ फाजिल खान की खुली आंखों की तरफ बढ़ा और उसने उसकी पलकें ढक दी। उसकी मुट्ठी में एक कागज दबा हुआ था। इस्माइल वो कागज निकालने ही लगा था कि दरवाजे की तरफ से कदमों की चाप उभरी। इस्माइल ने पीछे मुड़कर देखा, आतिफ अंदर दाखिल हो रहा था। 2 और आदमी भी उसके हमरा थे। इस्माइल का हाथ पीछे हो गया। इस्माइल से तारुस किए बगैर आतिफ हिना के करीब बैठ गया। उसके सर पर हाथ फेरने लगा। सिसकियां भरती हिना ने नजरें उठाकर उसकी जानिब देखा और अगले लम्हे वो भैया कहकर उससे लिपट गई। आतिफ बोला, गुड़िया, अल्लाह को यही मंजूर था। देखो वो बहुत दुखी थे और ये फैसला इन्होंने सोच समझ कर किया है। फांसी का फंदा यूं भी इनका मुकद्दर बन चुका था। शायद तुम्हें लंबी अजियत से छुटकारा देने के लिए इन्होंने ये काम किया है। और आंटी की मौत का जिम्मेदार भी तुम्हारे पापा ही थे। इन्होंने जो खड्डा दूसरों के लिए खोदा था उसमें इनकी अपनी बीवी गिर गई। उसकी बाप की मौत के सदमे को कम करने के लिए आतिफ ने हकीकत उसके सामने बयान कर दी। और गुड़िया, तुम्हें पता नहीं है लेकिन तुम्हारा बाप जानता था कि उसकी निगरानी हो रही थी। और याद है ना, तुमने पूछा था ना कि मैंने रिश्वत लेके तुम्हारे पापा को क्यों रिहा किया है। तो मैं वाजे कर दूं कि वो रिश्वत नहीं थी। सिर्फ तुम्हारे पापा को ये यकीन दिलाना था कि हम उन्हें पैसे लेकर रिहा कर रहे हैं। हकीकत में हमने निगरानी करके उसके जरिए दूसरे मुजरिमों को गिरफ्तार करना था। उस वक्त मैंने ये बात तुम्हें इसलिए नहीं बताई कि ये राज तुमसे संभाला न जाता। आखिर कुछ भी हो, वो तुम्हारे वालिद थे। हिना उसे जवाब दिए बगैर रोती रही। आतिफ के हमरा आने वाले अख्तर और इमरान फाजिल खान की लाश को चादर से ढकने लगे। इसी असना में इमरान की नजर उसकी मुट्ठी में बंद कागज पर पड़ी। उसने वो कागज निकाल लिया। कागज पर शिकस्ता अल्फाज में एक तहरीर सब थी। अपनी मौत का जिम्मेदार मैं खुद हूँ। इस्माइल शाह बेगुनाह है। उसकी बेगुनाही के सबूत मेरे सेफ में महफूज हैं। इस तहरीर के नीचे फाजिल खान के अपने साइन मौजूद थे। वो कागज इमरान ने आतिफ की समत बढ़ा दिया, जो पढ़कर आतिफ ने हिना की समत बढ़ा दिया। ये तुम्हारे पापा का आखिरी बयान है। हिना अपने वालिद की तहरीर अच्छी तरह पहचानती थी। तहरीर पढ़ते हुए वो दोबारा रोने लगी। अब तो यकीन आ गया ना मेरी बात का। वो बोली, भैया, मैंने पहले भी कभी आपकी बात पे शक नहीं किया। आतिफ ने कहा, अच्छा, अब तुम्हारा क्या इरादा है? वो बोली, मैं समझी नहीं भैया। आतिफ बोला, अच्छा, मैं बाद में बताता हूँ।
उसे कहकर वो इमरान की तरफ मुतवज्जे हुआ। इमरान, शाह जी को मेरे ऑफिस में ले जाओ। इमरान ने पूछना चाहा, हथकड़ी? आतिफ ने कता कलामी की, नहीं, ये मुजरिम नहीं, मेरा मेहमान है। हिना भैया कहते हुए वफूर जज्बात से आतिफ से लिपट गई। आतिफ की आवाज भर्रा गई थी, हाँ गुड़िया, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो ना। इमरान ने बाहर की तरफ कदम बढ़ाए, चलें शाह जी, और इस्माइल शाह उसके साथ हो लिया। फाजिल खान की मौत के बाद उसे जिंदगी में अजीब सा खला नजर आने लगा था। अगर आतिफ पार्टी वहां न आते तो वो खुद गिरफ्तारी दे देता। सिद्दीकी साहब से फोन पर मशवरा करके आतिफ ने दिलशाद अमीन को बुलवाकर सारा केस उसके हवाले कर दिया था। अगले दिन फाजिल खान का पोस्टमार्टम हुआ और फिर नाश हिना खान के हवाले कर दी गई। उसकी आखिरी रसूमात में आतिफ के साथ इस्माइल शाह ने भी शिरकत की थी। 2-3 दिन तक आतिफ हिना के साथ ही रहा। इस दौरान उसके मशवरे पर हिना ने नूरल, चौकीदार और माली के अलावा बाकी सारे मुहाफिजों को फारिग कर दिया था। तीसरे दिन जब उसने हिना से जाने की इजाजत चाही तो वो कहने लगी, भैया आपसे कुछ मशवरे करने थे। पहले तो मैं अपने हवास में ही नहीं थी। आतिफ उसके सामने बैठ गया। जरूर। वो बोली, भैया शाह जी के बारे में आपने क्या सोचा है? आतिफ ने कहा, अभी तक वो आराम से हैं, उससे तफसीली बातचीत आज होगी इंशाल्लाह। वो बोली, क्या उसे नाकर्दा जराइम की सजा मिलेगी? आतिफ ने कहा, अगर सजा मिलनी होती तो उसे भी पुलिस के हवाले कर देता। हिना बोली, भैया अपना वादा याद है ना? आतिफ ने कहा, कौन सा भला? वो बोली, आपने कहा था इसे कुछ नहीं होगा। आतिफ बोला, भाई तो कह दिया, मेरी तरफ से वो बरी है। अगर वो किसी मुल्क दुश्मन कार्रवाई में मुलव्विस होता तो फंस जाता। इसकी खुशकिस्मती कि वो अपने इंतकाम की तगोदौ में मसरूफ रहा और रॉ की सरगर्मियों में हिस्सा न ले सका। हिना ने अंदेशा जाहिर किया, वो पुलिस को भी तो मतलूब है। आतिफ ने कहा, इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन को उसकी बेगुनाही के सबूत मैंने दे दिए हैं और उसने वादा किया है कि इस्माइल शाह के खिलाफ सारे केस वो खत्म कर देगा। एसपी साहब भी इसके हक में हैं। और मजीद कुछ? हिना बोली, भैया अल्लाह ताला आपको इज्जत दे। उसके दिल की गहराइयों से दुआ निकली। आतिफ ने कहा, अच्छा अब क्या इरादा है? हिना हल्के से मुस्कुराई, इरादा क्या होना है, बड़ा भाई मौजूद है, ये उसका दर्द सर है। फाजिल खान की मौत के बाद ये पहला तबस्सुम था जो उसके होंठों पर जाहिर हुआ। आतिफ ने कहा, बहनें भाइयों के लिए बोझ नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं बेहतर है, और मेरी सोच भी एक रिवायती भाई की तरह ही है। हिना ने इस बात के इजहार में सर झुका दिया। आतिफ मुस्कुराया, यानी तुम्हें कोई एतराज नहीं? अब रह गई किसी अच्छे रिश्ते की तलाश, तो चंद अच्छे रिश्ते मेरे जहन में हैं। हिना खफगी भरे लहजे में बोली, भैया, और वहां से उठ गई। आतिफ मुस्कुराते हुए बाहर निकल आया। थोड़ी देर बाद वो अपने ऑफिस में दाखिल हो रहा था। कुर्सी पर बैठते ही उसने इंटरकॉम उठाकर कहा, इस्माइल शाह को मेरे पास भेजो, और जवाबन जी सर सुनते ही उसने रिसीवर रख दिया। थोड़ी देर बाद ही इस्माइल शाह उसके सामने था। बैठो शाह जी। उसने साइड पर पड़े सोफे की तरफ इशारा किया। वो बोला, शुक्रिया सर। आतिफ ने कहा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई यहाँ? वो बोला, नहीं सर, बस उलझन है कि एक मुजरिम के साथ ये मेहरबानी किस लिए? आतिफ ने कहा, मुजरिम तो छोड़ो, तुम अब मुल्जिम भी नहीं रहे। इस्माइल ने कहा, मगर मैं तो अपने जराइम से वाकिफ हूँ ना सर। आतिफ ने कहा, इसका फैसला कानून ने करना है, और अब मैं तुम्हारी कहानी बिला कमोकास्त सुनना चाहता हूँ। जवाबन इस्माइल शाह ने अपनी आप बीती तफसील से बयान कर दी। दरमियान में आतिफ सवाल भी करता रहा। उसकी बात खत्म होते ही आतिफ ने कहा, शाह जी खुशकिस्मत हो कि तुम मुल्क दुश्मनी में मुलव्विस नहीं पाए गए। दूसरा ये कि तुम्हारी दुश्मनी भी इत्तेफाक से उस बंदे के साथ थी जो खुद मुल्क दुश्मन कार्रवाइयों में शरीक था। इंस्पेक्टर हुक्मदाद गो सरकारी आदमी था, मगर उसके बारे में जो कुछ मुझे दिलशाद अमीन ने बताया है उसके मुताबिक उसका ज़ेरे जमीन चले जाना ही बेहतर था। बाकी इंस्पेक्टर दिलशाद अमीन भी तुम्हारा काफी तरफदार है। सबसे बढ़कर वो पागल हिना है। बहरहाल मैंने कभी आम मुजरिम को नहीं छेड़ा जब तक कि वो मुल्क दुश्मनी में मुलव्विस ना हो। आम मुजरिमों का केस पुलिस के पास होता है, जबकि पुलिस, एसपी और इंस्पेक्टर दिलशाद ने अपने कागजात में तुम्हें वैसे ही रिहा कर दिया है। इसलिए तुम मेरी तरफ से भी आजाद हो और जा सकते हो। आखिर में सिर्फ ये नसीहत करना चाहूंगा कि किसी आलम दीन से रुजू करके उससे अपने एके साहब के नजरियात की वजाहत जरूर करना, क्योंकि उसने बड़ी टेक्निक से तुम सबकी ब्रेन वॉशिंग की थी। इस्माइल ने कहा, थैंक यू सर, और अलविदाई मुसाफे के लिए उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। आपका एहसान मुझे याद रहेगा। उसका हाथ थामते हुए आतिफ बोला, और हाँ, भाई होने के नाते हिना खान का सरपरस्त अब मैं हूँ। गालिबन तुम्हें इस इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। एक जख्मी मुस्कुराहट इस्माइल के होंठों पर नमूदार हुई और वो कराहने के अंदाज में बोला, शायद कभी नहीं सर। आतिफ बेख्तियार खड़ा हो गया। पर क्यों? इस्माइल ने कहा, आतिफ साहब, मैं उसे कितना चाहता हूँ ये मैं खुद नहीं जानता। इस बात से खुद हिना अच्छी तरह वाकिफ है। वो मुझसे हर बात मनवाने की ताकत रखती है और मनवाती भी है, लेकिन आप मेरे माजी से वाकिफ हो चुके हैं। ईमानदारी से बताएं कि मैं उसके काबिल हूँ। आपका जवाब लाजिमन नफी में होगा, क्योंकि मुझे अपने अंदर से भी यही जवाब मिल रहा है। उसे यकीनन मुझसे बेहतर रिश्ते मिल जाएंगे।
मैं यूं भी अपने गुनाहों के कफारे के लिए कश्मीर या अफगानिस्तान का रुख करूंगा। शायद मुजाहिदीन की हमराही में मेरे गुनाह धुल जाएं और जो जहन्नम की आग मैं अपने लिए वाजिब कर चुका हूँ उसे मेरा खून बुझा दे। आतिफ ने करीब आकर उसे कंधों से पकड़ा। बेवकूफ, उसे मार दोगे? तुम उसकी मोहब्बत की शिद्दत का अंदाजा ही नहीं कर सके। वालिदैन की मौत के बाद तुमसे बिछड़ने का सदमा, यकीनन वो पागल हो जाएगी। वो इन सदमों को सिर्फ तुम्हारे आसरे पर झेल पाई है। याद रखो कि अहमियत माजी की नहीं, हाल और मुस्तकबिल की होती है। अगर तुम सुधरने का इरादा कर चुके हो तो तुम्हारे माजी को कुरेदने वाला कोई कमीना ही हो सकता है। और गुनाह सिर्फ खून के कतरों से नहीं, नदामत के आंसुओं से भी धुल जाते हैं। मुजाहिद अगर अफगानिस्तान या कश्मीर में कुफर से बरसरे पैकार हैं तो यही काम हम रोशनियों के शहर कराची में बैठकर कर रहे हैं। गो वो हमसे बहुत आला और अफजल हैं, मगर हमारा मकसद भी तो इस्लाम और पाकिस्तान का दिफा है और मैं तुम्हें भी इसकी दावत देता हूँ। तुम एक ट्रेंड शुदा आदमी हो। दुश्मन ने तुम्हें अपने मकासद के इस्तेमाल के लिए ट्रेनिंग दी है। तुम वही महारत उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करो। मेरे साथ शामिल हो जाओ, थोड़ा अरसा प्राइवेट काम करो, बाद में तुम्हें बाकायदा भर्ती करवा लूंगा। बोलो क्या कहते हो? इस्माइल ने कहा, आतिफ भाई, मेरे माँ बाप या कोई बड़ा तो है नहीं, क्या मैं खुद हिना का रिश्ता तलब करने की जसारत कर सकता हूँ? आतिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट जाहिर हुई। यकीनन मेरा जवाब असबात में होगा। इस्माइल गुलगीर लहजे में बोला, तो फिर मैं हिना के लिए आपके सामने झोली फैला रहा हूँ। आतिफ ने उसे सीने से लगा लिया। मेरे भाई, वो कल भी तुम्हारी मुंतजिर थी और आज भी तुम्हारी राह तक रहे हैं। इस्माइल बोला, मैं शुक्रिया कहकर आपके एहसान को हल्का करने की कोशिश नहीं करूंगा। उसकी आंखें पुरनम हो गई थी। आतिफ ने कहा, इसकी जरूरत भी नहीं है। इस्माइल ने अंदेशा जाहिर किया, वैसे एक दफा उसकी रजामंदी लेनी चाहिए थी। आतिफ बोला, अब तक शक में हो यार? इस्माइल ने कहा, नहीं भाई, अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा। आतिफ ने कहा, अच्छा यूं करना, घर जाते हुए उससे मुलाकात कर लेना। और इस्माइल ने उससे अलविदाई मुसाफा करते हुए कहा, आपकी दूसरी ऑफर पर मैं हिना से मशवरा करने के बाद ही कुछ कह सकूंगा। आतिफ बोला, हाँ भाई, जोरू वाले जो हुए और जोरू वाले गरीब जोरू के गुलाम ही होते हैं। इस्माइल उसकी बात पे हंसता हुआ वहां से निकल आया। हिना की कोठी तक उसे टैक्सी मिल गई थी। चौकीदार उसे पहचानता था। उसे हिना से मिलने का बताकर वो अंदर दाखिल हो गया। चंद लम्हों के बाद वो उसके सामने था। वो बेड पर लेटी जाने किन सोचों में गुम थी कि उसे इस्माइल शाह के अंदर आने का पता ही न चला। क्या मैं बैठ सकता हूँ? उसने चौंकते हुए उसकी समत देखा। इस्माइल को पहचानते हुए उसके चेहरे पर जो कौसे कज़ाह के रंग उभरे थे वो इस्माइल के दिल को खुशी से लबरेज करने के लिए काफी थे। शाह जी आप? मुझे लगा मुलाजिमा अंदर आई है। वो बेसाख्ता उसके इस्तकबाल के लिए खड़ी हो गई थी। आए यहाँ बैठें। वो उसे साथ लिए अपने बेड पर ही बैठ गई। इस्माइल ने कहा, मैं एक बात पूछने आया था। इस्माइल के संजीदा लहजे से उसके दिलकश चेहरे पर तफक्कुरात की परछाइयां उभरी और वो हौले से बोली। इस्माइल बोला, अगर एक तही दामन मुफलिस और बेघर आदमी आपको प्रपोज करने की जसारत करे तो आपके एहसासात क्या होंगे? इस्माइल के हाथ वो अपने मुलायम हाथों में लेते हुए बोली, मुझे कितनी खुशी होगी ये पूछने वाले को मुझसे ज्यादा पता है। इस्माइल ने कहा, तो फिर सुन लो, आज मैं इस काबिल हूँ कि कह सकूं, हिना मेरी बेरौनक जिंदगी में बहार बनकर आ जाओ। मेरी बेसुकूनी को सुकून से बदल दो। मेरे गमों को खुशी में ढाल दो। मेरी बन जाओ, सिर्फ मेरी, कि तुम पे सिर्फ मैं ही हक जता सकूं। हिना खिसक कर उसके करीब हुई। ये हक तो तुम्हें पहले भी हासिल था। उसने उसके कंधे पर सर रख दिया। शाह जी, मैं तुम्हारी चाहतों का बदला कभी नहीं चुका सकती, कभी नहीं। जो मान, जो इज्जत, जो एतमाद मुझे तुमसे मिला है उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। मैं कल भी तुम्हारी थी, आज भी हूँ और आइंदा भी रहूंगी। इस्माइल बोला, अच्छा मैंने आतिफ भाई से बात कर ली है और वो भी राजी हैं। तो फिर कब आऊं तुम्हें लेने? हिना शोखी से बोली, आए तो हो, लेते जाओ साथ। इस्माइल बोला, अच्छा मजाक नहीं, सच्ची बताओ, आज जुम्मा है, सोमवार का दिन कैसा रहेगा? वो बोली, मैं संजीदगी से बता चुकी हूँ शाह जी। इस्माइल ने कहा, अच्छा एक और बात, आतिफ भाई ने मुझे ऑफर की है कि मैं उनके लिए काम करूं, एक सीक्रेट एजेंट बन जाऊं। हिना बोली, ये तो मेरा ख्वाब है कि मेरा सरताज वतन का रखवाला बने। इस्माइल ने कहा, देख लो, खतरनाक काम है, जान भी जा सकती है। वो बोली, अगर मुझे यकीन हो कि अपनी आगोश में लेकर तुम्हें मौत से बचा लूंगी तो शायद मैं कभी तुम्हें आगोश से न निकलने दूं, लेकिन मौत तो बरहक है। इस्माइल तहसीन आमेज लहजे में बोला, मुझे फख्र है अपनी चंदा पर। हिना की आंखें सरशारी से बंद हो गईं और इस्माइल की उंगलियां उसके रेशमी बालों में सरसराने लगीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। कराची के इलाके कायदाबाद फ्लाईओवर के करीब धमाका। रोशनी के शहर कराची को तारीक करने की साजिशें बेनकाब।
بھارتی ایجنسی را کی چالبازیاں مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا۔ بدنام زمانہ ایجنسی بلیک واٹر کے غلیظ دھندے، پاکستانی ISI کے کارنامے، ملک کی خاطر قربانیاں، سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔